We'll continue with probability that we were doing last time. हाँ, probability कर रहे थे हम लोग. And we had discussed about cards. ठीक है? Let's take down some more questions based on card, and then we'll be taking some questions based on AP. ठीक है? So let's start. Question से शुरू करते हैं. Question number 1 लिखो. All the kings, queens are removed from a pack of 52 cards. All the kings, queens are removed from a pack of 52 cards. The remaining cards are shuffled. The remaining cards are shuffled. The remaining cards are shuffled, and then a card is drawn at random. Find the probability that card drawn first is a red face card. Second is a black card. ठीक है. Third is a black ace. चलिए. चलिए, तो should I start with the discussion? All the kings, queens are removed from a pack of 52 cards. The remaining cards are shuffled, and then a card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is a red face card, is a black card, is a black ace. चलिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे अब सैंपल स्पेस में आपके पास? Total there were 52. You have removed all the kings and all the queens. So 8 cards are removed. So now you'll be having 44 cards. Yes. Out of these 44 cards, you have to find out the probability of red face card. So how many red face cards would be there now? Totally there were 6, out of which 4 have been removed. So there will be 2. 2 face cards will be there. That 2 will be 2 jacks. So answer will be 1 by 22. Is it clear? Yes, sir. चलिए, तो 1 by 22 आ गया आपका. ठीक है. Next, it's a black card. So out of 44, how many black cards are there? So 52, you have removed. Actually, there were 26. So out of 26, you have removed 26 में से कितने आपने black king निकाले होंगे? 2 black king निकाले, 2 black queen निकाली, है ना? तो 4 कार्ड आपने निकाले, तो बच गया आपके पास 22. 22 by 44, which is 1 by 2. ठीक है. Next, you have a black ace. Black ace कितने होंगे अपने पास? 2.
So 2 by 44, 1 by 22. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, now let's take down a question based on AP. लिखो, a bag contains card. A bag contains cards numbered from 9 to 113. ठीक है ना? A bag contains cards numbered from 9 to 113. Find the probability that ठीक है ना, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है. उसमें सबसे पहले हम ले लेंगे कार्ड ड्रॉन, सॉरी, a bag contains cards numbered from 9 to 113. Find the probability that card drawn is multiple of 3. देखो, एक एक को हम एक टास्क असाइन करते हैं, ठीक है ना. टोटल मैं इसमें सब क्वेश्चंस बहुत सारे दूंगा, तो जितने पार्टिसिपेंट्स विल स्टार्ट विद दैट. तो हमारे साथ जो जो है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं हम आयुषी को. आयुषी, यू आर देयर? आयुषी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस. चलो, आवाज नहीं आ रही है. फातिमा, यू आर देयर? फातिमा? Yes, sir. Okay, so first question, Fatima, you will do it. Okay, I'll ask you. Next, second लिखो. Card drawn is a multiple of 2 but not 4. ये करेंगे निगम. निगम, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Nigam will do this question for me. Next, card drawn is a multiple of 3 but not 5. ये करेगा कौन करेगा? ये अरिष्ट करेगा. अरिष्ट, आवाज आ रही है मेरी? अरिष्ट नहीं आ रही. अरिष्ट, ठीक है. नेक्स्ट, गर्व को आवाज आ रही है? गर्व? यस सर. ठीक है, तो गर्व करेगा ये क्वेश्चन. नेक्स्ट, फोर्थ वन, कार्ड ड्रॉन. अच्छा, इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं. फोर्थ वाले को थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं हम. 2 cards are drawn. Probability that, ठीक है. नहीं, 2 cards करेंगे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. रुको, उसको बाद में डिस्कस करेंगे. 2 cards मुझे बताना पड़ेगा. एक ही कार्ड को पहले करते हैं. कार्ड ड्रॉन इज सच दैट sum of the digits is multiple of 9. Card drawn is such that sum of the digits is multiple of 9. ये करेगा जैनिल. है हमारे साथ जैनिल? यस सर. ठीक है, जैनिल ये वाला क्वेश्चन करेगा. जैनिल हमारे लिए. नेक्स्ट, फिफ्थ, कार्ड ड्रॉन is a perfect square. Card drawn is a perfect square. ये क्वेश्चन सृष्टि करेगी. सृष्टि, are there? Yes, sir. Okay, Srishti will do this question for me. Sixth, card drawn is a number
product of whose digits is, let's say, 8. Product of whose digits is 8 bracket 2 digit number, 2 और 3 digit number होना चाहिए इसमें, ठीक है ना, 2 और 3 digit number. ओके, ये कौन करेगा? We'll give this question to Archie. You're there? Yes. Okay. We'll give it to Archie. Archie, do this question for me. Okay. सर ये प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखा है? प्रोडक्ट Product of whose digits is 8. उसके digits का product 8 होगा, ठीक है? ओके सर. ओके, ठीक है. चलिए तो इतना कर लेते हैं, 7 पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा रख लेता हूँ ताकि सब लोग देख पाए इसको. This is a question. A bag contains cards numbered from 9 to 113. Find the probability that card drawn is a multiple of 3. Card drawn is a multiple of 2 but not 4. Card drawn is a multiple of 3 but not 5. Card drawn is such that sum of the digits is multiple of 9. Card drawn is a perfect square. Card drawn is a number, product of whose digits is 8. चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. So Fatima, what is the answer that you're getting for the first one? Sir, I'm getting 1/3. 1/3. Okay. चलिए, so let's see कैसे solve करेंगे इसको. One by 3. Okay. So card drawn is a multiple of 3. So multiple of 3 starts from 9, 12, 15 until where will go? 1 1 1 1 1 1 जाएगा ना लास्ट, है ना? Yes. Yes, sir. यस सर. So how many numbers are there? Can you find out the nth term of an AP? So 1 1 1 is equals to 9a plus n minus 1. What is the common difference? 3. Yes. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 102 by 3 is n minus 1. So n you'll be getting is 35. कितना आ रहा है n? 35 आ रहा है ना? Yes, sir. 35 is the total number of favorable outcomes. By what is the total number of outcomes? 113 minus 9 plus 1. क्या क्या करते हैं? 113 minus 9 plus 1. तो 114 minus 9 हो जाएगा 105. Yes. So your answer is 1/3. Correct. ठीक है ना? सबका आ रहा है 1/3. यस सर आ रहा है. Okay. एक्सक्यूज मी सर. Yes बेटा. सर ये 113 माइनस 9 प्लस 1 ये क्या किया? बेटा देखो 1 से 10 होता है ना, 1 से 10, तो इसके बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 10 नंबर्स होते हैं. कैसे आता है? 10 numbers. 10 minus 1 plus 1. ठीक है, माइनस करके एक बढ़ाने का. या एपी के फॉर्मूला से देखो, nth टर्म 113 इज a प्लस n minus 1 इनटू कॉमन डिफरेंस इज 1. तो कितना हो जाएगा? 113 minus 9 plus 1 will give you n. Okay. ओके सर. Okay, now let's go to the second part. Second question ले लेते हैं. Second क्या लिखा है? Card drawn is a multiple of 2 but not 4. ये निगम को दिया था. निगम क्या आंसर आ रहा है इसका? सर 5/21. 5/21 आ रहा है. अच्छा, 5/21. Okay, let's see कैसे करेंगे इसको. Number is a multiple of 2 but not 4. 2 का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन 4 का नहीं. तो शुरू कहाँ से करेंगे? 10 से शुरू करें क्या? 10. सर इसको हम 18. यस बेटा, क्या बोल रहे हो बताओ.
सर वो मतलब 113 डिवाइडेड बाय 2 और 113 डिवाइडेड बाय 4 कर देते तो जो क्वेश्चन आएगा उसमें से हाँ। 2 वाले में से 4 माइनस कर देंगे और 4 वाले क्वेश्चन में से 2 माइनस कर देंगे तो दोनों हाँ। के मल्टीपल आ जाएंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके टोटल नंबर ऑफ 105 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। एपी कॉम्प्लिकेट लगता है थोड़ा। ये कितना हो जाएगा, लास्ट नंबर जो हो जाएगा आपके पास 110 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। एपी क्या बन जाएगी, 110 इज इक्वल्स टू, कर सकते हैं बिल्कुल अब्बास, 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो 100 बाई 4 वुड बी n माइनस 1, तो n आ जाएगा 26। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, यस। sir. सो 26 अपॉन 105 आ रहा है, एक बार देख लो निगम, यही आ रहा है आपका भी? आपका शायद 25 आ रहा था मुझे लगता है ना? यस सर। 26 आ जाएगा, ठीक है ना? सबका यही आ रहा है 26 बाई 105। यस सर। Yes, sir. ओके, चलिए लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड दिया था हमने गर्व को करने के लिए। गर्व, थर्ड का आंसर क्या आ रहा है गर्व? सर मेरा आ रहा है 28 बाय 105। 28 बाई 105 आ रहा है। ओके, लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 5। 3 का मल्टीपल होगा चलेगा, लेकिन 5 का नहीं होना चाहिए। तो 3 के मल्टीपल लिख दिया आपने, 9, 12, 15 से लेके 111 तक। मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 5, तो इसमें 5 के मल्टीपल कौन से होंगे? 3 और 5 के कॉमन होंगे जो, वो आ जाएंगे 15, 30 से लेके कौन सा आएगा लास्ट, 105। ठीक है ना? ठीक है, तो ये 7 नंबर आ जाएंगे ऐसे। और 3 के मल्टीपल कितने निकाले थे आपने ऊपर? 35। तो टोटल फेवरेबल कितना आ जाएगा? 35 माइनस 7 बाई 105 विच इज 28 बाई 105। ठीक है, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर लेना। क्या आ जाएगा? 7 4 जा 7, 15 सा। यस, इज इट क्लियर? Yes, sir. लेट्स गो विद फोर्थ नाउ। चलिए फोर्थ में चलते हैं। जेनिल को दिया था, जेनिल फोर्थ वन। Sir, just a second, I'm solving it. ओके, तब तक फिफ्थ चलते हैं। चलो सृष्टि के पास चलते हैं। सृष्टि, फिफ्थ वन इज डन। Sir, 8 by 105. 8 by 105. Okay, how many perfect squares are there between these two numbers? We have to start from 9. तो कौन से perfect square आ जाएंगे? 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। क्या इसके बाद दूसरा कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप लोग के कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं? यस सर। हाँ सर, 8 आएंगे। 8 आ रहे हैं, ठीक है ना? सृष्टि एक बार चेक कर लो। सो यू विल गेट 8 आउटकम्स, सो 8 by 105, दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके, यही बताया था कि 8 ही बताया था आपने सृष्टि? Yes, sir, 80 बताया था। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट, सिक्स्थ। आर्ची डन विद द सिक्स्थ वन? Yes, sir. Archie, what is the answer that you're getting So for the sixth? मेरा क्या रहा है Archie? What is the answer that you're getting? आवाज, I think it's not clear. देखो, card drawn is a number, product of whose digits is 8. कौन बताएगा इसका आंसर? Total number of outcomes 105. Favorable, product of whose digits is 8. 8 प्रोडक्ट का डिजिट कब होगा? जब 18 नंबर रहा हो, या 81 रहा हो, जब 24 रहा हो, 42 रहा हो। और कभी 8 बन सकता है क्या? नो सर। नो। 108। फेवरेबल आउटकम 108 में बेटा प्रोडक्ट 0 भी तो है, तो 0 हो जाएगा वो तो, है ना? यस, यस। यस सर। So 4 by 105. चलिए, सिक्स्थ वन इज 4 by 105. नाउ लेट्स कम टू फोर्थ। फोर्थ किसको दिया था? फोर्थ जैनिल को दिया था। जैनिल, फोर्थ वन डन? 12 by 105.
12 by 105. अच्छा, card drawn is such that the sum of the digit is a multiple of 9. Sum of the digit 9 का multiple कब होगा? Sum of the digits 9 का multiple कब होगा? बताओ जेनिल। जब सम 9 हो, है ना? हाँ यस सर 9 और कब कब आ सकता है? 18 में, 81 18 में, फिर नेक्स्ट 27, 72, नेक्स्ट 36, 63, नेक्स्ट 45 44 45, 54, यस, नेक्स्ट 63, वो आ 36. गया, 63 भी आ गया, और एक छूट है, 99 99. 108 90 भी छूट गया, 99 और 108, 108, है ना? 117 नहीं बस इतना ही है। तो कितना आ जाएगा आंसर? 2, 4, 6, 8, 10, 11 और 12। सो इट इज 12 by 105। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फोर्थ वन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, यस चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी का। नाउ देखो, प्रोबेबिलिटी बहुत बार है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चन के रिलेटेड भी यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, देखो। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? An equilateral triangle is given. An equilateral triangle is given, and 3 congruent circles are drawn, and 3 congruent circles are drawn such that they touch each other externally. An equilateral triangle is given, and the congruent circles and 3 congruent circles are drawn such that they touch each other externally. Find the probability that if a देखो होगा क्या अगर ऐसे हम बोल रहे हैं, find the probability that the selected region that the find the probability that the selected region is inside the triangle. Okay, so find the probability that the selected region is inside the triangle but not inside the circle. ठीक है, चलिए। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर एक बार फोर्थ वाला एक बार बताना ना। फोर्थ वाला, कार्ड ड्रॉन is such that the sum of the digit is multiple of 9। मतलब उसके ऊपर जो डिजिट्स, जो नंबर आएगा उसके डिजिट्स का जब मैं सम करूंगा तो वो 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 9 हो सकता है खुद, 18 मतलब 9 आ जाएगा, तो 81 भी 9 दे देगा, 27 9 दे देगा, 72 9 दे देगा, 36 और 63, 45 54, 90 99 और 108। ओके सर।
सर इसका फिगर बना दो ना एक बार। फिगर बना दो क्या? सर इसमें सर्कल और ट्रायंगल का कुछ रिलेशन दिया नहीं है, तो मतलब सर्कल तो बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है। हाँ वही। एंड 3 congruent circles are drawn such that they touch externally. लिख लो थोड़ा बहुत डिटेल, अगर और भी स्पेसिफिक लिखना है फिगर बनाने के लिए तो लिखो। सेंटर्स ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स ड्रॉ फिगर फर्स्ट। कुछ ऐसे फिगर की हम बात कर रहे हैं। यस बेटा। 88√3/7। अच्छा, नहीं वो तो नहीं आएगा, 88√3/7 वो तो शायद ही आएगा सर। 88√3/7 प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो क्या? नहीं आएगा 88√3। एक सेकंड, लेट मी ड्रॉ प्रॉपर फिगर। ठीक है, ये ऐसे इसको टच करेगा और एक ऐसा फिगर होगा जो इसको टच करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मान लो टच कर रहा है, ठीक है ना? सर 2π/3 आएगा, 2π/3 5/3 शायद। सर कोई वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब जैसे रेडियस या साइड कुछ? जरूरत पड़ रही है क्या? मुझे नहीं लगता जरूरत नहीं पड़ेगी सर। देखो ठीक क्वेश्चन है, तो अभी ऐसे मैंने कर- खुद ही फ्रेम कर दिया है। आई डोंट थिंक जरूरत पड़नी चाहिए। कोई बात नहीं सर, चले। सर इसमें एरिया ऑफ सेक्टर यूज होगा? आपको कौन सा एरिया निकालना है? हम कौन सा एरिया मांग रहे हैं पता है? हम ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। सर तो ऐसा करना है क्या रहा? सर की है ना, मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जो है ना सर्कल ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, और है ना ट्रायंगल से माइनस कर देना है पूरे ट्रायंगल के एरिया से। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ करना है क्या? यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सर तो फिर Okay, R² में आएगा ना वैल्यू। अरे एस ले लेना, S/2 ले लेना रेडियस। देखो क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए क्या हम सोच रहे हैं, लेट्स से दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। 2 मिनट से 2 मिनट सॉल्व हो ही रहा है, बस हो ही गया। सर इसमें तो सर, फिर हो ऐसा गया। भी होगा ना कि ये दोनों सर्कल, मतलब ये अब जैसे कि एक साइड BC है, तो दोनों सर्कल जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो BC का सेंटर पॉइंट होगा। दोनों सर्कल जहां मिल रहे हैं वो BC का सेंटर पॉइंट होगा, मतलब सर मतलब ये नाम दे दे तीनों तीन एक्सटर्नली वो कर रहे हैं ना, टच कर रहे हैं ना। हाँ तो मतलब अब BC पे वो जहाँ पे मिलेंगे वो BC का हाफ होगा, ऐसा कुछ होगा ना इसमें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मिड पॉइंट होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा, ये भी मिड पॉइंट होगा, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। आई थिंक हो जाएगा आराम से। सर थोड़ा अजीब आंसर आ रहा है, थोड़ा अजीब आंसर आ रहा है। सर हो गया। कोई बात नहीं। देखो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो शेडेड रीजन है वही आपका फेवरेबल रीजन है। यस, जो शेडेड रीजन है वो फेवरेबल है, दूसरे वाले अनफेवरेबल है। तो अनफेवरेबल क्या है? 3 सर्कल के सेक्टर है। अनफेवरेबल इज जैसे 60 डिग्रीज बेटा, देखो ये 60 डिग्री है सर्कल का पार्ट, ये 60 डिग्री सर्कल का पार्ट है, ये 60 डिग्री सर्कल का पार्ट है। तो टोटल कितना डिग्री सर्कल का पार्ट है? 180 डिग्री पार्ट ऑफ सर्कल है। यस,
सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट अ सेमी सर्कल? क्या मैं बोल सकता हूँ एक सेमी सर्कल है? तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2. यस यस और नो? और जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर. अब ये क्या है यहाँ पे? 2r के स्क्वायर के बराबर है ना? √3/4 है ना? तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 4r स्क्वायर. तो बोल सकते हैं √3r² हो जाएगा. यस कैन आई से दैट? तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? व्हाट डिड आई कम टू नो फ्रॉम हियर? मुझे पता चला कि probability of selecting an area, that's the red part here, which is inside the triangle but not inside the circle, is nothing but √3r² minus pi/2r² upon √3r². yes, क्योंकि गिवन हमें ट्राइंगल है, ट्राइंगल में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऐसा रीजन सिलेक्ट हो जाए जो कि सर्कल में ना हो लेकिन ट्राइंगल में हो. तो r² तो सब में से कट गया. आंसर क्या आ गया? √3 minus pi/2 upon √3. yes, so probably if you simplify this you get 2√3 minus pi/2 √3 है ना. अब 2√3 कितना होगा? कर लो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा. रेशनलाइज कर देंगे है ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेंगे. √3 को 1.732 ले लेना. 1.73 ठीक है. ये वैल्यू अराउंड आ जाएगी 3.4 कुछ है ना. 1.732 मतलब 73, तो 3.464 minus 3.14 by 3.464 round about that. ठीक है. प्रॉब्ली 0.1 के आसपास आंसर बैठेगा आपका. ठीक है. 0.1 34 by 3.4 0.1. यस नवधा सर एक बार डायग्राम दिखाना. पूरा मैं दिखा देता हूँ ना क्वेश्चन, आपको अच्छे से लिख लो. ठीक है ना. प्रॉब्ली 0.1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट कर लो इसको. और सर वो लास्ट क्लास में आपने सर्कल्स का वो एक क्वेश्चन दिया था, वो बोला था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसका. किया आप लोगों ने सॉल्व? कोशिश किया? सर कोशिश तो किया पर नहीं हुआ सर. फिगर बना पाए आप? फिगर बन गया आपसे फिगर? नहीं सर. तो प्रोबेबिलिटी देखो, मोस्टली हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. प्रोबेबिलिटी में इतना ही था. ओके. थोड़े बहुत और अलग अलग फिगर्स है वो हम एरिया अंडर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में करेंगे है ना. मोर फिगर्स विल डू इन दैट. तो अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पहले एरिया निकाल लेंगे एंड देन वी कैन डेफिनेटली टेक द सर्कल एंड सॉल्व इट. ओके. तो इसको नोट डाउन कर लो, देन आई विल शो यू दैट क्वेश्चन एज वेल. वो क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूँ आपको. ठीक है. कोई किसी को डाउट है क्या? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस यस सर. हाँ सर हो. यस सर. किसी को कोई डाउट है तो बता दो, फिर वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कल मैंने दिया था. ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन दैट आई गिव लास्ट क्लास. थिंक ये था, सर्कल्स में था है ना. तो ये क्वेश्चन था आपके पास सर्कल्स में. वी सपोज टू डू क्वेश्चन. क्या लिखा है इसमें देखो. क्वेश्चन क्या लिखा है? 3 सर्कल्स ऑफ द रेडियाई ए बी सी सच दैट ए सबसे छोटा है, फिर बी उससे बड़ा, फिर सी उससे बड़ा है. ठीक है. किसी ने सॉल्व किया इसको? कोई भी कर पाया है सॉल्व? कोई महारथी हो हमारा? थोड़ा बहुत हुआ. हाँ, फिगर बना लिया? फिगर हाँ सर फिगर तो बन गया था. फिगर बन गया था. देखो ए बी सी 3 सर्कल हैं तो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. इफ दे हैव एक्स एक्सिस एज देयर कॉमन टेंजेंट देन, तो एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट है. चलिए तो लेट्स फर्स्ट मेक द फिगर. एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट का मतलब कुछ ऐसा होगा.
एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट का मतलब होगा कुछ ऐसा फिगर बनेगा जिसमें ये मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस है हमारे लिए, ओके। फिर एक सर्कल बनाता हूं मैं, एबीसी 3 सर्कल चाहिए आपको, ठीक है ना। तो एक पहले सर्कल बनाता हूं मैं ऐसा कुछ, ओके। ठीक है, एक सर्कल मैंने ये बना दिया है। नेक्स्ट एक सर्कल थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ, बड़े रेडियस वाला है, तो लेट्स मेक अ बिगर सर्कल आउट ऑफ इट। जैसा एक सर्कल बना दिया हमने, ओके। मान लो टच कर रहे हैं ना। अब एक तीसरा सर्कल बनाना है जो इन दोनों को टच करे। यस, सही है ना। हाँ सर, ऐसा ही बन। ऐसा ही बनाया आपने भी, हाँ सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर नहीं, ऐसा नहीं बनाया रिद्धि। सर हम ये छोटे सर्कल को ये मीडियम वाले के हम लेफ्ट में भी तो रख सकते हैं, ऐसा भी बन तो सकता है ना। फिर कैसे टच करेगा, बड़े को कैसे टच करेगा फिर? दोनों को टच करना है ना। बड़े को कैसे टच एक करेगा? दूसरे को। हाँ, लिखा हुआ ना, क्वेश्चन में लिखा था ईच अदर एक्सटर्नल। ईच अदर का मतलब क्या, सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सर यस 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 बेटा। एक्स एक्सिस के नीचे भी तो बन सकते हैं। हाँ, लेकिन एक दूसरे को टच कैसे करेंगे फिर? हाँ छूना है ना उनको, छुओ ना सर छुओ। थोड़ा बड़ा बना देंगे तो टच करेगा। तो फिर एक अगर बड़ा बना दे तो एक्स एक्सिस को काट देगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? अगर जो बड़ा बनाएंगे तो एक्सेस को काटेगा, हमें तो चाहिए कि वो छुए एक्सेस को, शुड टच नॉट कट। गेटिंग द पॉइंट? यस यस इजाजत दोगे तो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। यस चलिए, अब क्वेश्चन में उसने जानकारी देने के लिए हमें क्या बता दिया है उसने जानकारी दिया है कि ए बी सी आर द रेडियाई एंड दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, दीज आर द कॉमन टेंजेंट, एक्स एक्सिस द कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ से कुछ रिलेशन आप डेवलप करो तो बात बने, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। इफ आई जॉइन दीज टू, ठीक है, सबको नामकरण कर लेते हैं पहले तो, हाँ, लेट्स डू द नामकरण। इसका सेंटर मान लेते हैं ए का सेंटर ए, बी का सेंटर बी, सी का सेंटर सी, ठीक है। अब जब मैं इनको ज्वाइन करता हुआ जाऊंगा, व्हेनेवर आई विल बी जॉइनिंग देम, तो मुझे बीसी का लेंथ मालूम है ना। व्हाट इज, देखो पहले हर एक का लेंथ आपको मालूम है, हर एक चीज का लेंथ आपको मालूम है। आपको ए बी का लेंथ मालूम है जो कि ए प्लस बी है, आपको बी सी का लेंथ मालूम है जो कि बी प्लस सी है, आपको ए सी का लेंथ मालूम है जो कि ए प्लस सी है, ठीक है। अब आपको वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो हम क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं, व्हाट इज द अप्रोच दैट वी विल बी फॉलोइंग। मैं क्या फॉलो करने वाला हूँ, मैं फॉलो करने वाला हूँ, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो ये मेरा पाइथागोरस से कुछ मैं इधर से रिलेशन निकाल पाऊंगा, परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया है। दूसरा मैं परपेंडिकुलर कहाँ से निकालने वाला हूँ, तो एक ये आ गया, लेट्स से इस पॉइंट को डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दिया, तो ए डी ए ई। और एक जो मैं निकालूंगा रिलेशन वो यहाँ से निकालूंगा, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट को मान लेते हैं ए डी बी ई, एफ ले लेते हैं इसको, चलो ठीक है। ओके, सो लेट्स राइट with the help of Pythagoras. What is CF? ये कितना होगा बताओ, आप बता सकते हो CF कितना होगा? BF का स्क्वायर C माइनस ए हो जाएगा। ओ माइनस B, हाँ C माइनस बी, C माइनस बी, हाँ। ओके, नेक्स्ट CF। CF का आपका हो गया C माइनस बी। दूसरा मुझे एक चीज बताओ, पाइथागोरस जब आप इस ट्राइंगल में लगाओगे, ABD लगाओ, चलो ट्राइंगल ABD, लिखने से ज्यादा लगा लेते हैं, चलो ट्राइंगल ABD में जब मैंने पाइथागोरस लगाया तो क्या मैं बोल सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन गेट AD स्क्वायर एज, AD स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ AD स्क्वायर आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अच्छा, AB स्क्वायर कितना था, A प्लस बी का स्क्वायर, BD स्क्वायर कितना था, अच्छा BD कितना होगा बताओ, बी माइनस ए। बहुत अच्छे, तो B माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा
4ab हो जाएगा, है ना? तो AD कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4ab, मतलब 2 रूट AB हो जाएगा. यस, डू यू एग्री ऑन दिस और नॉट? हाँ सर. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. दूसरा सिमिलरली आप AC निकाल सकते हो ना, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. आप अप्लाइंग इन ट्राइंगल ACE. एक सेकेंड, इन ट्राइंगल ACE क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE square plus CE square. So what AE square will be equal to? AC square minus CE square. AC square कितना है आपके पास? A plus C का स्क्वायर है ना? CE square कितना है? CE square कितना है? CE बेटा ये लेंथ है, ये C कितना हो जाएगा? minus A. C minus A हो जाएगा. ओके, C minus A का स्क्वायर. So AE would be definitely 2 under root of AC. Yes. तो अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. BF कितना हो जाएगा? ओरली बता सकते हो आप? 2 अंडर रूट ऑफ BC हो जाएगा. यस, यस और नो? बता पाओगे Yes आप? sir. हाँ. Yes sir. Yes sir. हाँ, सर. ठीक है. सेम पाइथागोरस लगा लेना. अब उसने क्वेश्चन में मुझे एक चीज बताओ. मुझे पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस है ना? दो परपेंडिकुलर लाइंस है मेरे पास. लिखो लिखो लिखो. एक सेकंड. ये जो एक लाइन है और ये जो एक लाइन है, ये दोनों पैरेलल होगी बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर वालों पे 90 है. ये वाली परपेंडिकुलर थी तो 90 आपने दोनों पे ड्रॉप करा है. तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि AD plus AE would be equal to what? BF. So 2 under root of सर आपकी AB स्क्रीन. plus 2 under हाँ, root of ठीक है. AC is 2 under root of BC. सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा? 2 काट दो आप. यस, यस और नो? 2 काट दिया आपने. अब क्या कर लो? रूट ABC से डिवाइड कर दो. डिवाइड बाय रूट ऑफ ABC. तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रूट C प्लस 1 अपॉन रूट B इज 1 बाई रूट A. यस, हो गया. 1 बाई Yes रूट sir. C प्लस 1 बाई रूट ऑफ B इज रूट ऑफ A. सेकंड इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? यस Yes सर. sir. चलिए बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉल्व कर लिया आपने. सर नीचे नीचे. लिख लो इसको. 1 मिनट से नीचे. पूरा दे रहा हूँ बेटा, पूरा लिख लो आप. ठीक है ना? ठीक है. चलिए तो कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, है ना? 2 मिनट. सर्कल्स भी कंक्लूड किया, प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हुआ आपका. सरफेस एरिया वॉल्यूम्स ले लेते हैं अभी. ठीक है ना? सर 2 मिनट. यस 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 बेटा. डन. ओके, चलें, सबका हो गया. हाँ सर. हाँ सर.
ठीक है, so now we'll be starting with